So welcome students for the video lecture of subject concrete technology. So we'll see today form work. What do you mean by form work? So myself Rushali Mane, lecturer in Civil Department of Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. So vision of the institute: excellence in technical education to empower youth. Then mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Then develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Then strengthen industry institute interaction. Then vision of the department: impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Then mission: imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability. Then to develop social and environmental responsible civil engineers. Then effective implementation of teaching learning process to benefit students. Then course outcome: maintain the quality of concrete. Then unit outcome: explain the given type of formwork and stripping time. Then program outcomes: map DRR, basic and discipline knowledge, design development of solution, engineering practices for society, sustainability and environment, project management and lifelong learning. So formwork. What is formwork? So formwork is mold or open box like container into which fresh concrete is poured and compacted. तो formwork क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली अ मोल्ड ही होता है जो ओपन बॉक्स टाइप होता है जिसमें फ्रेश कंक्रीट को हमको पोर करना है और कॉम्पैक्ट करना है, तो हमको रिक्वायर्ड शेप का कंक्रीट मिल जाएगा. देन जो कंक्रीट को जब फॉर्मवर्क में डाला जाता है तो वो क्या होता है, एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम फॉर्मवर्क को रिमूव कर सकते हैं. प्रॉपर शेप और स्ट्रेंथ गेन होने के बाद कंक्रीट की उसको रिमूव कर सकते हैं. देन टॉप फॉर्मवर्क का नॉर्मली ओपन ही रहता है. तो देन फॉल्स वर्क जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सपोर्ट द फॉर्मवर्क इन करेक्ट पोजीशन. फॉल्स वर्क मतलब वो जो बाम्बू से सपोर्ट दिया जाता है, एक्चुअली फॉल्स वर्क जो है वो सपोर्ट देता है फॉर्म वर्क को. देन फॉर्म वर्क, देखिए फॉर्म वर्क क्या होता है. सो फॉर्म वर्क जो होता है एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो फ्रेश कंक्रीट एक रिक्वायर्ड शेप में और डायमेंशन में अचीव करने में हमको हेल्प करता है. सो डेफिनेशन इज: formwork is defined as complete system of temporary structure built to contain fresh concrete so as to form required shape and dimension. So ये है formworks. Then requirement of formwork क्या है कि it should be strong enough to resist the weight of concrete. Then it should be economical as compared to total cost of construction. Then it should be possible to use the formwork for more number of times. Then it should give smooth finish and shape to concrete faces. Then it should be easily and locally available. तो formwork जो है वो easily locally available तो होना ही है. Then strong होना चाहिए, concrete का weight ले सके, economical होना चाहिए. देन नंबर ऑफ़ टाइम्स हम उसको यूज़ कर सके. ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ किया और फेंक दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए. नंबर ऑफ़ टाइम्स हम उसको यूज़ करेंगे तभी इकोनॉमिकल होगा और वो स्मूथ फिनिश और शेप प्रॉपर कंक्रीट का हमको मिलना चाहिए. तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फॉर्म वर्क. देन इस तरह से फिक्स किया जाता है. देन इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ फॉर्म वर्क. तो इकोनॉमिकल यूज़ कैसे होगा, तो डिज़ाइन ऑफ फॉर्मवर्क टू प्रोवाइड एडिक्वेट बट नॉट एक्सेसिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी. तो एडिक्वेट होना चाहिए, स्ट्रेंथ और रिजिड होना चाहिए. देन जो साइजेस जो है वो फैब्रिकेट होने चाहिए ऐसे कि वो बार बार यूज़ किया जा सके. इतनी मतलब ऐसे प्रैक्टिकल साइज में फॉर्मवर्क प्रिपेयर होने चाहिए कि वही साइज स्टैंडर्ड हर स्ट्रक्चर में स्टैंडर्ड हो. देन
ड्राइंग्स जो है वो इस तरह से प्रिपेयर होने चाहिए कि हमारे फॉर्म वर्क बनाने से पहले हमारे ड्राइंग्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए, ताकि जो फॉर्म वर्क है हम ऐसे बनाएं कि वो हर डिज़ाइन में काम आ सके हमारे फॉर्म वर्क। एक बार बनाया हुआ फॉर्म वर्क, और फॉर्म वर्क जो है वो ग्राउंड पे हमारा फैब्रिकेट हो जाए, ना कि स्कैप होल्डिंग। मतलब वहाँ पर जो ग्राउंड पे जितना टाइम कम लगता है फॉर्म वर्क को प्रिपेयर करने में, उतना ज़्यादा टाइम स्कैप होल्डिंग में लग जाता है। इसलिए हमको ग्राउंड से उठा के उसको डायरेक्टली जहाँ हमारी ज़रूरत है वहाँ प्लेस कर देंगे। इस तरह से हमारा फॉर्म वर्क बनना चाहिए। देन मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म वर्क मटेरियल। तो हमको मटेरियल ऐसे चूज़ करना चाहिए जो स्मूथ फिनिश भी दे और हमको इकोनॉमिकल भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी कर पाए हम, और इजीली अवेलेबल भी मटेरियल हो, तभी हमारी इकोनॉमी अचीव हो पाएगी। देन नंबर ऑफ नेल्स जो हम फॉर्म वर्क को फैब्रिकेट करने में यूज़ करते वो कम से कम लगने चाहिए, ताकि हम सेफ रख सके अपना फॉर्म वर्क, इजीली रिमूव कर सके। देन फॉर्म वर्क को तभी रिमूव करना चाहिए जब परमिसिबल हो मतलब फॉर्म वर्क मतलब हमारा कंक्रीट जब प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करे और सेल्फ सपोर्ट से खड़ा रह सके, तभी हम फॉर्म वर्क को रिमूव करेंगे। देन क्लीन एंड ऑयल द फॉर्म वर्क। ऑयलिंग और क्लीनिंग फॉर्म वर्क की होना चाहिए, ताकि आगे इजीली हम उसको यूज़ कर सकें। देन कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हमको इंस्टॉल करने हैं, ताकि वर्कर्स जो है वो कंटिन्यूएशन में काम कर सके। अगर हमारे कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स रहेंगे तो कंटिन्यू वर्क जो है हमारा कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, मतलब वही फॉर्म वर्क्स हम आगे भी यूज़ कर पाएंगे। देन कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ फॉर्म वर्क। ओवरलोडिंग ऑफ प्रॉप्स, मतलब सफिशिएंट ओवरलोडिंग अगर हो गई, मतलब प्रॉप्स अगर सफिशिएंट साइज़ के नहीं है, प्रॉपर साइज़ के नहीं प्रोवाइड किए, तो फॉर्म वर्क फेल हो जाता है। देन फेलिंग ऑफ शटरिंग ड्यू टू एक्सेसिव वाइब्रेशन ऑफ नीडल सरफेस वाइब्रेटर। तो ये जो वाइब्रेटर जो है वो कभी भी फॉर्म वर्क को टच नहीं होना चाहिए। अगर वो टच हो गया तो उसके वाइब्रेशन से क्या है, फॉर्म वर्क अपने शेप और साइज़ प्रॉपर रखता नहीं है, नट बोल्ट जो है वो लूज हो जाते हैं। देन फेलियर ड्यू टू इम्प्रॉपर सुपरविजन, अगेन इनएडिक्वेट डिज़ाइन, प्लानिंग ऑफ शटरिंग, सेंटरिंग एंड कॉन्क्रीटिंग एक्टिविटी। Then failure due to dislocation of props or bracing due to careless movement of laborers having access below the formwork of slab or beam. Then failure due to insufficient cross bracing. Cross bracings improve the stiffness of props against buckling. तो क्रॉस ब्रेसिंग जो है मतलब क्रॉस में अगर जो बाम्बूज होते हैं वो क्रॉस में अगर लगाए तो झुकता नहीं है। फॉर्मवर्क अगर झुक भी गया तो भी शेप नहीं खराब होता, बकलिंग नहीं होता है। देन डिफरेंट फॉर्मवर्क मटेरियल्स। तो फॉर्मवर्क मटेरियल्स जो है वो अलग अलग होते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फॉर्मवर्क्स के मटेरियल्स है टिम्बर, प्लाईवुड, स्टील। तो हम एक 1 बाय 1 देखेंगे। टिम्बर कॉमनली यूज मटेरियल है अलग अलग फॉर्म्स में, एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जाता है, एक ट्रेडिशनल मटेरियल माना जाता है टिम्बर फॉर्मवर्क को। टिम्बर मतलब वुड, और इकोनॉमिकल मटेरियल है, इजीली अवेलेबल है, और कंस्ट्रक्शन में हमेशा यही यूज़ होता है। वर्कर्स के लिए वेल नोन है, तो वर्कर्स इसको इफ़ेक्टिवली और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इजीली। सो दिस इज टिम्बर एज अ फॉर्मवर्क मटेरियल। देन एडवांटेजेस टिम्बर के, कैन बी कट इनटू एनी रिक्वायर्ड साइज इजीली, लाइट इन वेट एंड कैन बी हैंडल्ड इजीली, good thermal resistance which prevent the damage of concrete in colder regions, easy to understand the construction method, hence skilled laborers are not necessary, it is easy to replace the damaged part of timber forms, then timber formworks can be easily dismantled, मतलब easily remove किया जा सकता है। and disadvantages, ड्राई टिम्बर क्या करेगा, कंक्रीट का वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ रिड्यूस कर सकता है। और वेट फॉर्म में है तो मॉइस्चर कंटेंट ऐड करेगा कंक्रीट में, अगेन कंक्रीट में क्रैक्स का चांसेस है। देन लिमिटेड यूसेज है इसका, मतलब बार बार यूज़ नहीं किया जा सकता, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता। देन
इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर इन ऑल्सो यूज फॉर फॉर्मवर्क। प्लाइस के फॉर्म में, बहुत बड़ी बड़ी शीट्स फॉर्म में अवेलेबल होता है। देन प्लाईवुड यूज़ करने का एक मेन रीज़न भी है कि ये स्मूथ फिनिश देता है एज़ कम्पेयर टू टिम्बर। फिर इसके थिकनेस जो है 7 mm से 32 mm है, और शीट्स जो है वो 1220 टू 2440 साइज़ में अवेलेबल होते हैं, और वो बहुत सफिशिएंट होता है साइज़। देन कर्व्ड स्ट्रक्चर्स भी एफिशिएंटली प्रोवाइड किया जा सकता है। यह है प्लाईवुड एज ए फॉर्मवर्क मटेरियल। देन एडवांटेजेस, कैन बी कट इनटू रिक्वायर्ड साइजेस इजीली। प्लाईवुड strong, durable and light in weight, then provide smooth finish on the surface. Large plywood sheets available है for making construction of formwork quicker and easier. Curved formworks can also be prepared using plywood. When compared to timber, it gives more number of reuses. Disadvantages, when compared to timber, it is costly. Thin plywood sheets cannot sustain the weight of concrete. They may bow out if proper thickness is not provided. Then steel, it can also be used as a formwork material. कॉस्टली होता है, लेकिन मोर नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सलेंट फिनिश देता है स्टील फॉर्मवर्क, और मास स्ट्रक्चर लाइक डैम, ब्रिज, इसके लिए स्ट्रॉन्ग और सेफ फॉर्मवर्क होता है स्टील फॉर्मवर्क। एडवांटेजेस, स्टील फॉर्मवर्क्स आर ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्गर, provides uniform and smooth surface finish to the structure, great reusability, easy to fix the formwork and also easy to dismantle. Then disadvantage, cost is very much higher, it is heavy in weight and requires lifting equipment for large structure formworks. Corrosion will occur when there is frequent contact with water. The size and shape of formworks available are limited. तो लिमिटेड साइज और शेप होता है, लेकिन स्टील फॉर्मवर्क के एडवांटेजेस ज़्यादा है, कॉस्टली हो पर स्मूथ फिनिश और स्ट्रॉन्ग भी फॉर्मवर्क है। देन समरी, इंट्रोडक्शन टू फॉर्मवर्क, रिक्वायरमेंट, मटेरियल्स, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। असाइनमेंट क्वेश्चंस, डिफाइन फॉर्मवर्क, स्टेट द मटेरियल यूज फॉर फॉर्मवर्क, state the requirements of good formwork, draw neat sketch of formwork for rectangular column. So this was about today's lecture. Thank you.